নমস্কাৰ, মই জুন গগৈ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছো। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা আছে আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণাটো হৈছে অতি শীঘ্ৰেই যি ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল সেয়া কিমান সময়লৈকে পাব তাক লৈ বৃহৎ প্ৰশ্ন সন্মুখীন হৈছিল আৰু এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে 2028 চনলৈকে ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল আৰু অন্ন যোজনা আঁচনিৰ অধীনত যিমানসমূহ সেৱা আছে 2028 চনলৈকে লাভ কৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি অনুৰোধ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি ৰাজ্যৰ লাখ লাখ হিতাধিকাৰী তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল 2028 চনলৈকে পাব আৰু বিশেষকৈ সীমান্তৱৰ্তী এলেকাসমূহত অৰ্থাৎ সীমান্তৱৰ্তী ৰাজ্যসমূহত যিসমূহ চাউল বিতৰণ কৰা হ'ব তাত বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিয়া হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তত আজি অনুমোদন দিছে। ইয়াৰ বাবে কেইবা হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে তেওঁলোকে অনুমোদন দিছে, মুকলি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে আৰু 2028 চনলৈকে ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউলৰ পৰা আদি কৰি সকলো ধৰণৰ সুবিধা বিনামূলীয়া চিকিৎসা পৰ্যন্ত লাভ কৰিব। আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ফুল প্লেট গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে এটা ভাল খবৰ সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছোঁ। এই মুহূৰ্ততে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে ৰাজ্যৰ লগতে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল বিনামূলীয়াকৈ 2028 চনলৈকে পাব আৰু অতি শীঘ্ৰে বন্ধ হোৱাৰ কথা আছিলে। যি ৰেচন কাৰ্ডৰ নতুনকৈ হিতাধিকাৰী 19 লাখ হিতাধিকাৰী নতুনকৈ সৃষ্টি কৰিব অসমত, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ তৰফৰ পৰা এই মুহূৰ্তত ভাল খবৰটো আহিছে যে দেশৰ লাখ লাখ কোটি কোটি যি জনতা আছে, দুখীয়া লোক আছে, তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল 2028 চনলৈকে লাভ কৰিব। মোদীৰ কেবিনেটত এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ বাবে কেইবা হাজাৰ কোটি টকা 17,000ৰো অধিক সেইসমূহ কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব। পুঁজি মুকলি কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ তৰফৰ পৰা। আজি অশ্বিনী বৈষ্ণৱে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দেশবাসীক এই ভাল খবৰটো দিছে যে ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল, মিড ডে মিল আৰু যিসমূহ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ যি সেৱা সেই সকলো সেৱা 2028 চনলৈকে তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিব আৰু 2026ত ইলেকশ্যন আছে। ইলেকশ্যনৰ লৈ ৰাজ্যত যিসমূহ সেৱা আগবঢ়োৱা হৈছে ৰেচন কাৰ্ডৰ নতুনকৈ হিতাধিকাৰী অন্তৰ্ভুক্তকৰণৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত 2028 চনলৈকে অৰ্থাৎ আৰু 4 বছৰলৈকে বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে এই আঁচনিখনৰ ম্যাদ। আমি অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ সংবাদমেল যোগে কি ঘোষণা কৰিছে সেয়া শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে মন দি শুনি লওক যে ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউলক লৈ বা অন্ন যোজনা আঁচনিক লৈ কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে। राशन के माध्यम से किस तरह से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इंक्लूसिव डेवलपमेंट का आज एक और बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, वो है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का फोर्टिफाइड राइस सप्लाई। आप जानते हैं कि बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें स्कूल में मिड डे मील हो या आंगनवाड़ी में बच्चों को खाद्य दिया जाता है, प्लस 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ नागरिकों को महीने के महीने फ्री राशन जो पहुंचाया जाता है। इस माध्यम से, इस फ्री राशन के माध्यम से किस तरह से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी लाए और किस तरह से दो जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, एनीमिया की समस्या और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, हाउ डू वी एड्रेस द टू मेजर प्रॉब्लम्स दैट आर फेसिंग आवर सोसाइटी? First is of anemia and second is of micronutrients deficiency. इसके ऊपर last 3 years में lot of work has happened. 2022 में ICDS और PM पोषण प्रोग्राम से इसका बिगिनिंग की गई थी फोर्टिफाइड राइस सप्लाई करने का। 2018 में एक्चुअली इसका पहला पायलट किया गया था और इससे पहले जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को गुजरात में किया था और ये दुनिया के करीब करीब 140 देशों में फोर्टिफाइड राइस या फोर्टिफाइड फूड ग्रेन्स या फोर्टिफाइड फूड मटेरियल्स दिए जाते हैं, जिसमें विशेष फोकस होता है टू सप्लीमेंट आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। इन सब का सप्लीमेंट करने का एक तरीका दुनिया भर में इट्स ऑलरेडी अ वेरी वेल एक्सेप्टेड, वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस। WHO वगैरह सब के सब इसको बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं। तो 2018 में पायलट हुआ था, 2022 में ICDS और PM पोषण प्रोग्राम्स कवर हुए थे। 2023 में ऐड किया गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को और 250 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिसमें स्टंटिंग की इंसिडेंस ज़्यादा थी, यानी बच्चों की ग्रोथ कम रहे ऐसे इंसिडेंसेस ज़्यादा थे, उन सबको कवर करके एक विस्तृत तौर पे
फोर्टिफाइड राइस सप्लाई करने का प्रोग्राम चलाया गया था। और गत मार्च में ये फैसला लिया गया कि सारे के सारे एरियाज जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राइस की या फूड ग्रेन की सप्लाई होती है, उन सब एरियाज को इस प्रोग्राम में कवर किया जाए। तो साथियों, आज कैबिनेट में फैसला लिया गया कि 2024 से 2028 तक इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा और 17,082 करोड़ 17,082 करोड़ का टोटल इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एंड दिस विल बी 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी और इसमें ये एक्सपेक्टेशन है कि देश में एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये दोनों बड़ी जो प्रॉब्लम्स विशेषकर महिलाओं में और विशेषकर जो हमारे ऐसे वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उन सब में ये जो प्रॉब्लम देखी गई है उसको बड़े तरीके से बड़े पैमाने पे एड्रेस किया जा सकेगा। इस काम को करने में एक कंप्लीट सप्लाई चेन का डेवलपमेंट किया गया, क्योंकि आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। राइस को फोर्टिफाई करने वाले मैन्युफैक्चरर्स, फिर राइस मिल्स जिसमें ये ब्लेंडिंग हो सके, प्री मिक्स मैन्युफैक्चरर्स, लेबोरेटरी जिसमें प्रॉपर टेस्टिंग हो सके, और विटामिन और मिनरल को प्री मिक्स करने में एग्जैक्ट क्वांटिटी आई कि नहीं आई, वो सब टेस्टिंग हो सके। ओवरऑल करीब 11,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से पूरे देश भर में पूरा ये कंप्लीट सप्लाई चेन डेवलप हुई। तो इसका आने वाले वर्षों में इसका बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट दिखेगा, बहुत इम्पैक्ट दिखेगा। देश भर में जब सारा का सारा एरिया कवर हो रहा है तो देश में जो 50-60 वर्षों से जो प्रॉब्लम्स चली आ रही थी एनीमिया की और स्टंटेड ग्रोथ की, वो इससे सिग्निफिकेंटली दूर होगी। तो साथियों, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक सबको समावेशी ग्रोथ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और इसी भावना के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने देखा पहले भी तैयार